All the players were signing fan jerseys and all that. So I saw jersey number 13, called him सरपंच साहब. उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पाजी. मेरे लिए क्रिकेट में जो धोनी और कोहली का लेवल है उससे ऊंचा लेवल हॉकी में श्रीजेश का है. तो हेलो हुआ, we hugged each other, कैसे हो भाई. तो he said, भाई गुड डे. I said, yeah, very good day, good match. बोला नहीं भाई, पद्मा अवार्ड, पद्मा भूषण. क्या बात कर रहे हो? People of your generation and the Gen Zs are going to kill me. For me, cricket meant Sachin Tendulkar. लेकिन इतनी मेरी जरूर खुशकिस्मती है कि 2 बार विराट कोहली को मेरी पंजाबी कमेंट्री सुनाई गई थी. Oh, wonderful. Yeah, and he was enjoying it so nicely. He's won anyways. Oh, Wow. ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी. Hello and welcome to a very special episode of Knuckleball and the Knuckleball podcast. And today we have a guest that is very special. And if you have been watching the Olympics for a long time, you've heard this man. If you've been watching the IPL for a long time, you've heard this man. If you've been watching Kabaddi for a long time, you've heard this man. If you've been watching hockey for a long time, you've definitely heard this man. Sriram, who do we have with us? So basically, we have someone that the two of us genuinely want to be when we are veterans in this industry, and someone that we have looked up for a very long time. We have with us Sunil Taneja, sir. Thank you so much for joining us, sir. Thank you guys for making me feel old, and it's a pleasure to be here. So you're not at all old at all. You're the veteran of the industry that we have looked at, and we were discussing this before the recording that if we have even half the career that you have had, we would think we have done something incredible in our life. Very, very kind of you. It's really good to be here. NDTV के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है. I wanted to work here. Right. I could not get a job, but I'm glad आज मैं कुर्सी की दूसरी साइड बैठा हूँ. So life is good. It's our honor to have you, sir. सर हाल ही में हॉकी इंडिया लीग हुआ, आप थे. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हॉकी इंडिया लीग स्टार्टेड एंड रीस्टार्टेड एंड बिकम अगेन. हाउ डिड यू फाइंड द एक्सपीरियंस दिस टाइम एंड हाउ इज इट चेंज्ड इतने साल बाद? Amazing experience. I mean, first things first, मेरे लिए as a sports lover, as a hockey lover, if you tell me कि आपने स्टेडियम में बैठ के 35 दिन लगातार हॉकी देखनी है, it's a treat for me. And if you tell me कि वो 35 दिन आपने कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठ के हॉकी देखनी है with a lip mic in your hand, I mean, इससे ज्यादा मैं कुछ मांग नहीं सकता. हॉकी was the first game जिसकी मैंने कमेंट्री की थी, as you know. और हॉकी इंडिया लीग के पहले 5 में से 4 सीजन आई वाज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ द लीग एज अ कमेंटेटर. एज अ फैन मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था कि हमने बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीते और फिर हॉकी इंडिया लीग का कमबैक हुआ. एंड द हॉकी इंडिया, द फेडरेशन इटसेल्फ कॉल्ड मी, देयर बिग बॉसेस आस्क्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो ये ऑनर की बात है. देश का सबसे पुराना, सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक स्पोर्ट जिसके साथ थोड़ा सा प्यार मुझे एज अ कमेंटेटर मिला, उसके लीग का हिस्सा बनना, 35 दिन 36 दिन राउर केला जैसी वो सैंक्टम सैंक्टोरम में बैठ के मैचेस देखना. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हमारे सामने खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट मेरे सामने खेल रहे हैं, हमारे सरपंच हमारे सामने खेल रहे हैं. who's who of world hockey and Indian hockey is playing, and you're meeting them every day, calling the action. Incredible experience. I think I was lucky to be there. I was honored to be there. Sir, you just mentioned the Sarpanch, and we can't really look past the Sarpanch at this point. He had a fantastic tournament just now. I mean, his last year or so in Indian hockey has been fantastic. He was awarded the Padma Award as well. Yeah. The Khel Ratna Award. Khel Ratna Award. He was, of course, the captain of the Indian team at the Paris Olympics as well. तो उनके साथ आपका कैसा एक कनेक्ट रहा है? Because I know for sure you have interacted with them over multiple occasions. तो उनके साथ कैसा है सर इनका एक्सपीरियंस आपका? I'll let you know one big secret right now जो मैंने आज तक टीवी पे नहीं बोला है. Wow. हरमन से मेरी पहली प्रॉपर मुलाकात पता कब हुई थी? Take a wild guess. ओलंपिक्स. पेरिस ओलंपिक्स के बाद. पेरिस Wow. ओलंपिक्स के After बाद. he was the sarpanch of Indian hockey team, declared by the media, Right. called by the PM himself. मेरी पहली प्रॉपर मुलाकात पेरिस ओलंपिक्स के बाद दिल्ली में हुई थी, जब हॉकी इंडिया ने हमारे सारे प्लेयर्स को फेलिसिटेट करना था और श्रीजेश का फेयरवेल था. अच्छा. हॉकी इंडिया कॉल्ड मी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उस इवेंट की एमसीइंग करूं. हाँ. वहां पहली बार प्रॉपर मैं और हरमन मिले हैं
उससे पहले आई डोंट रिमेम्बर कि पिछली हॉकी इंडिया लीग में, बिकॉज दैट वाज लाइक 7-8 years बैक, देन हरमन वाज एन अपकमिंग यंग प्लेयर। आई डोंट रिमेम्बर मैंने कभी हरमन से प्रॉपर बात की हो। सो जब वो सरपंच बन गए थे, जब वो मेडल जीत लिया था, आई रिमेम्बर प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग ग्रीन रूम में थे, हॉकी इंडिया से मुझे ब्रीफ मिल रहा था, पूरा हम रन ऑर्डर देख रहे थे, एंड all the players were signing fan jerseys and all that. So I saw jersey number 13 Right. from behind. So I called him, Sarpanch साहब। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, पाजी। So that was अभी कुछ महीने पहले मेरी पहली बार मुलाकात हुई है। And I'm sure, I think मीडिया में भी और शायद दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा कुछ पुराना रिश्ता है या कोई दोस्ती है या मेरा फेवरेट प्लेयर कुछ ज्यादा ही हरमन है। So I'm letting you in this secret कि मेरी पहली मुलाकात अभी हुई है। बाकी सारे सीनियर प्लेयर्स को मैं कई सालों से जानता हूँ, हम मिलते रहे हैं, हम बात करते रहे हैं। सो कमिंग बैक टू योर थिंग कि हरमन के लिए अब 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हरमन के लिए और इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं गया था। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन रेट हमारा अच्छा नहीं था, हम टॉप 4 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए थे। सो हरमन के लिए एज अ कैप्टन एंड एज अ प्लेयर बाउंस बैक करना बड़ा जरूरी था। एंड कम एट द आवर, कम एट द मैन, ओलंपिक से बड़ा कोई स्टेज हो नहीं सकता। ओलंपिक का टॉप स्कोरर बनना, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस वाज आफ्टर हाफ अ सेंचुरी जब कोई इंडियन ओलंपिक का टॉप स्कोरर बना है। 10 गोल हरमन ने किए, इंडियन टीम ने टोटल 15 किए थे, उसमें से 10 अकेले हरमन के थे, वो टॉप स्कोरर बने थे। और उससे पहले हमारी एक एक अनफॉर्चुनेट रेपुटेशन थी कि इंडियन टीम लास्ट मोमेंट्स में गोल कंसीड करके जीता हुआ मैच हारती है या ड्रॉ हुआ मैच हार जाती है। पेरिस ओलंपिक्स में हमने इसको उल्टा किया। पहला मैच 1-1 का ड्रॉ हो रहा था, लास्ट मोमेंट्स में, लास्ट 1-2 मिनट में हमें पीसी मिला, हरमन ने कन्वर्ट करके मैच जितवाया। सेकंड मैच हम अर्जेंटीना से 1-0 हार रहे थे, 1.5 मिनट बचा हुआ था, हमें पेनल्टी कॉर्नर मिला, हरमन ने कन्वर्ट करके हमें वो मैच ड्रॉ करवाया। ब्रॉन्ज मेडल मैच हम 1-0 से पीछे थे। एंड आई रिमेम्बर, मुझे अपनी कमेंट्री की बहुत कम बातें याद रहती हैं, बट आई रिमेम्बर कि मैंने कहा था कि वी जस्ट नीड 2 पीसीज, हमें 2 पीसी मिले एंड वी केम फ्रॉम बिहाइंड और हरमन ने दोनों गोल कन्वर्ट कर। सो हमारी रेपुटेशन हरमन ने बदल दी। पहले हम लास्ट मोमेंट्स में गोल कंसीड करके मैच हारते थे, अब हम लास्ट मोमेंट्स में या इवन ट्रेल करते हुए गोल करके मैचेस जीत रहे हैं, ओलंपिक मेडल जीत रहे हैं। उसका जितना क्रेडिट उन प्लेयर्स को जाता है जो डी में जाके पेनल्टी कॉर्नर मैन्युफैक्चर करते हैं, द लाइक्स ऑफ मनदीप, द लाइक्स ऑफ मनप्रीत, द लाइक्स ऑफ गुरजंत, शमशेर, अभिषेक, सुखजीत। पेनल्टी कॉर्नर मैन्युफैक्चर करना भी उतना जरूरी है, बट अंडर प्रेशर उसे कन्वर्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम है, जो हरमन लगातार कर रहे हैं। ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट, ऑल द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्डी हरमनप्रीत सिंह। इनफैक्ट मैंने उनका इंटरव्यू किया था उसी लीग के दौरान फॉर द ब्रॉडकास्टर। जब हरमन को बुलाया जाएगा, ही विल बी कॉल्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हरमनप्रीत सिंह। एक फ्रेज में 2 इतने बड़े लेजेंड्स का नाम, पहला दद्दा ध्यानचंद का और आखिरी हरमनप्रीत सिंह का। वो सुन के खुद उनके गूज़बम्प्स उनको फील हुए कि यार दद्दा ध्यानचंद के साथ मेरा नाम पुकारा जा रहा है। बट ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। ही डिजर्व्स, आई थिंक इंडियन हॉकी की हिस्ट्री में ही इज द 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑलरेडी। नंबर 1 दादा ध्यानचंद 574 goals. Number 2 सरदार बलबीर सिंह दोसांझ 246 goals in 61 matches, and now Harman 200 plus goals. Wow. So imagine किस कंपनी में वो बैठे हुए हैं। And sir, it was almost लग रहा था ओलंपिक्स में it's almost a one man show. I mean, एक आपने जैसा कहा कि पेनल्टी कॉर्नर आया तो पेनल्टी कॉर्नर गोल, बट एक और आदमी के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। यू नो PR श्रीजेश स्पेशली क्वार्टर्स में एंड ब्रॉन्ज मेडल मैच में, यू नो ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसे परफॉर्मेंस। अभी तो पद्मा भूषण भी मिला। Yes. How has Shrijesh been like for Indian hockey, and how have you seen Shrijesh as a person over these years? See, श्रीजेश और मेरा करियर ऑलमोस्ट एक साथ शुरू हुआ था। Right. ये 2006 की बात है, जब पुरानी फेडरेशन थी और पुरानी हॉकी लीग हुआ करती थी। दैट वाज माय डेब्यू एज अ कमेंटेटर इन 2006। और उसी टाइम श्रीजेश का किसी टीम के साथ डेब्यू हुआ था। ही वाज अ पार्ट ऑफ सैफ गेम्स आल्सो फॉर इंडियन टीम। यंग गोलकीपर, टॉल, चिल्ड आउट। तो तभी भी और अभी भी मेरी हैबिट है प्लेयर्स से मिलना, उनसे बातचीत करना व्हेनेवर पॉसिबल, यू नो, टू नो मोर अबाउट देम। उसके बाद इंडियन टीम में श्रीजेश आए। अनफॉर्चुनेटली जब
इंडिया के चॉइस 1 गोलकीपर बलजीत सिंह की आंख में बॉल लगी थी, तो श्रीजेश को भरत छेत्री के साथ टीम में रहने का मौका मिला। लंदन ओलंपिक्स और उसके बाद रियो में वो मेन गोलकीपर बने, फिर टोक्यो में पेरिस। medal. एंड अगेन वन ऑफ दोज रेयर थिंग्स जो मुझे अपनी बोली हुई याद रहती हैं। इनफैक्ट अ फैन रिमाइंडेड मी ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया लीग कि मैंने पेरिस ओलंपिक्स में श्रीजेश के लिए ये कहा था कि एक होते हैं लेजेंड्स, फिर आते हैं श्रीजेश। Right. जहाँ दादा ध्यानचंद हैं, जहाँ केडी सिंह बाबू हैं, जहाँ सरदार बलबीर सिंह है, जहाँ शाहिद हैं, जहाँ धनराज पिल्ले हैं, वहाँ पे श्रीजेश खड़े हुए हैं। आई मीन टू प्ले 4 ओलंपिक्स इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट। आई मीन पहले सरदार उधम सिंह साहब थे, फिर लेस्ले क्लॉडियस बने, फिर धनराज पिल्ले बने, देन श्रीजेश एंड मनप्रीत टुगेदर। So you were saying. तो इमेजिन आपका करियर 16 साल का है, 2012 ओलंपिक से लेके 2024 ओलंपिक तक खेलना, और सारा साल हॉकी प्लेयर खेलता है। एंड टू मेंटेन दैट फिटनेस इज वन थिंग, एंड टू वेयर दैट इक्विपमेंट जो आई थिंक कितना 10-20 किलो भारी इक्विपमेंट है। Exactly. एंड आई रिमेंबर जो श्रीजेश का फेयरवेल प्रोग्राम था, आई वाज एमसीइंग दैट प्रोग्राम, और मैंने जब श्रीजेश को स्टेज पे बुलाया उनसे बात करने के लिए, उनसे पूछा था कि भाई इतना भारी इक्विपमेंट पहनना इज वन थिंग, और उसमें इतनी स्विफ्ट मूवमेंट करना, डाइव्स लगाना, स्ट्रेचिंग करना सेकंड थिंग, और फिर गोल पोस्ट के ऊपर चढ़ के जो बैठते हैं वो मेडल जीतने के बाद, हाउ डू यू डू दैट? सो ही इज एक्चुअली अ सुपरमैन। सो ही सेड, सुनील भाई वो इक्विपमेंट नहीं है, वो मेरे शरीर का हिस्सा है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड स्किन। सो और इट कम्स फ्रॉम अ स्टेट जहां से हॉकी की बहुत बड़ी लेगेसी नहीं है, केरला। मुझे नहीं लगता कि मैं 2-3-4 प्लेयर से ज्यादा, इनफैक्ट 2-3-4 भी नहीं है जो केरला से आते हैं जो हॉकी खेले हैं। आई कैन नेम अ फ्यू कबड्डी प्लेयर्स, आई कैन नेम अ लॉट ऑफ, you can name a lot of football players and a lot of volleyball players, but हॉकी में नहीं। तो केरला से आना, और इनफैक्ट आई रिमेम्बर ही टोल्ड मी कि उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था जस्ट टू गेट रिड ऑफ स्टडीज। यार स्पोर्ट्स खेलेंगे तो स्टडी से छुट्टी मिल जाएगी। तो आई थिंक वो फुटबॉल भी खेला करते थे, मल्लूस के ब्लड में फुटबॉल है, जैसे हम पंजाबियों के ब्लड में हॉकी है और कबड्डी है। तो फुटबॉल से हॉकी में आना, गोलकीपिंग करना, एंड टू राइज द रैंक्स, इतना साल खेलना और फिटनेस मेंटेन रखना। बट फॉर मी द बिगेस्ट अचीवमेंट अबाउट श्रीजेश इज, द बेस्ट पार्ट अबाउट श्रीजेश इज ओलंपिक शुरू होने से पहले डिक्लेयर कर देना कि दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट इवेंट। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आई थिंक क्रिकेट के अलावा बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स नहीं हैं जहां बहुत से प्लेयर रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम डू इन द वे श्रीजेश डिड, कि ओलंपिक से पहले, और वो भी बड़े अच्छे स्टाइल में, एक उन्होंने कॉमिक बनाई थी, कुछ ग्राफिक्स के जरिए उन्होंने अनाउंस किया था कि मेरा लास्ट ओलंपिक्स है। आपको नहीं पता कि ओलंपिक्स कैसा रहेंगे आपके लिए। आप वेट कर सकते थे कि जब मेडल आया तब मैं अनाउंस कर दूंगा, या थोड़ा और डिले कर दूंगा। ही स्टिल फिट, स्टिल प्लेइंग एक्सीलेंट हॉकी। वो उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत सेल्फ बिलीफ चाहिए। एंड कुडोस टू हॉकी इंडिया, जब उन्होंने अनाउंस किया कि मेरा लास्ट ओलंपिक्स है, मेरा लास्ट इवेंट है, हॉकी इंडिया ने कहा ये हमारी जूनियर इंडियन टीम संभालिए। सो वो ट्रांजिशन का भी उनको टाइम नहीं मिला। एकदम परफेक्ट लगता है कि श्रीजेश इज द वन हु विल mentor the young guys. Exactly. और I remember talking to his family. His wife is a BAMS doctor, so am I. So मैं उनसे डॉक्टर टू डॉक्टर बात कर रहा था कि भाभी ऐसी बातें हो रही थी। एंड शी सेड कि हमें तो पहले श्रीजेश को एज अ प्लेयर हम इंडियन टीम में देखते थे, सारा साल या तो कैंप चल रहे हैं। आई थिंक हॉकी प्लेयर साल में 1 या 2 महीने भी घर में नहीं बिताते हैं, और अब आप एज अ कोच फैमिली से दूर हो। सो द काइंड ऑफ सैक्रिफाइस दैट फैमिलीज मेक। So I think अभी श्रीजेश was telling me कि he is planning to move his family from Kerala to Bengaluru, क्योंकि बेंगलुरु के साई सेंटर में हमारा हॉकी कैंप रहता है। सो 6 महीने हमारी टीम्स वहाँ हैं, 6 महीने टूर में हैं। तो वो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली कितना सेक्रीफाइस करेगी। सो ये पूरा एक पैकेज बन जाता है श्रीजेश का। एंड ही इज द बेस्ट गोलकीपर इंडिया हैज हैड इन द पास्ट लाइक 40-50 ईयर्स। और स्पेशली अगर मैं इफ यू आस्क मी वन मैच, द ओलंपिक्स का हमारा ब्रॉन्ज मेडल मैच, सॉरी ओलंपिक्स का हमारा क्वार्टर फाइनल, टू प्ले विदाउट अमित रोहिदास फॉर 3 गुड क्वार्टर्स, अनथिंकेबल। उस मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे गोल पे 2 डजन शॉट लिए थे। 24-25 शॉट ऑन गोल थे ग्रेट ब्रिटेन के लिए, गोल हुआ सिर्फ एक। और 25 में से 24 हमारे सुपर हीरो ने लगाए। क्या खिलाड़ी है वो। आई मीन
एक होते हैं लेजेंड्स, फिर आते हैं श्रीजेश। उसने चरितार्थ किया है इस बात को। Sir, talking of Shrijesh, I have a very personal anecdote that I want to share with you about Shrijesh. Please, So, please. so I had the very big fortune of meeting him and interviewing him very recently. And you just listed उनका कितना illustrious career रहा है. मतलब anyone having that kind of career, तो there is no, as an audience, you can't look at think कि this man, you know, he's real. You know, like. But when I met him, he was so humble. Like I think that's one of his best qualities that I feel. He was so humble. When I asked him about such a heartwarming incident of having his jersey retired with India, Yeah. he was so nice about it. He just, the one thing he said was, you know, in our country, sportsmen like Dhoni and Sachin have had their jerseys retired, but no one from the hockey. But I don't think I'm at their level. But that is just his humility talking right there. Yeah, 100%. That is definitely I wanted to mention. ओके, चलो मैं भी कहानी सुनाता हूँ आपको। अभी हॉकी इंडिया लीग, आई थिंक जिस दिन पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए थे, आई वाज डूइंग कमेंट्री, और बीच बीच में आई हैव अ हैबिट ऑफ चेकिंग माय फोन कि कहीं से कोई इनपुट आ रहा है हमारे ब्रॉडकास्टर की तरफ से या फेडरेशन की तरफ से। तो आई सॉ द यू नो न्यूज़ के जो हमारे फ्लैशेज आते हैं कि पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। तो उसकी मैंने फटाफट लिस्ट देखी और यू नो बहुत थोड़ी सी देखी। चलो मैच खत्म हुआ, मैं कमेंट्री बॉक्स से बाहर गया, दूसरे किसी बॉक्स से वीआईपी बॉक्स से श्रीजेश बाहर निकले। तो हेलो हेलो हुआ, वी हग्ड ईच अदर, कैसे हो भाई, कैसे हो भाई। तो ही सेड भाई गुड डे। आई सेड या वेरी गुड डे, गुड मैच। बोला नहीं भाई, पद्मा अवार्ड, पद्मा भूषण। क्या बात कर रहे हो? मैंने पूरी लिस्ट नहीं देखी, आई वाज डूइंग कमेंट्री, मैंने सिर्फ 2-4 नाम पढ़े थे ऊपर से। बोला भाई पद्मा भूषण। आई सेड सेकंड और थर्ड? बोला भाई सेकंड। क्या बात कर रहे हो? तो बड़ा रेयर होता है जब मेरे अंदर का जर्नलिस्ट जागता है, क्योंकि नॉर्मली तो मैं फैन रहता हूँ। वो बड़ा रेयर मोमेंट था जब मेरे अंदर का एक जर्नलिस्ट जागा। यू कैन इनफैक्ट सी दैट रील और यूज दैट इन दिस वीडियो। मैंने फटाफट फोन निकाला और आई रिकॉर्डेड अ वीडियो कि मेरे साथ हैं पद्म भूषण PR श्रीजेश। सच हम्बल मैन यार। वो कह रहे गुड डे, मुझे पद्म भूषण मिल गया। और अभी भी इनफैक्ट जो हमारे नए एंकर्स थे, नए कमेंटेटर्स थे, जो पहली बार हॉकी में आए हैं, जो पहली बार मिले हैं, उन सबके लिए फैन मोमेंट था। मेरे लिए भी इट्स ऑलवेज अ फैन बॉय मोमेंट, मीटिंग श्रीजेश और हरमन और मनप्रीत और इवन यू नो थियरी ब्रिंकमैन ऑफ हॉकी। सो but the way he meets you, the way he treats the new anchors and the new commentators, of the way he is meeting me, अरे भाई वो like you said कि धोनी और कोहली का लेवल, मेरे लिए क्रिकेट में जो धोनी और कोहली का लेवल है उससे ऊंचा लेवल हॉकी में श्रीजेश का है। टू प्ले 4 ओलंपिक्स, 2 ओलंपिक मेडल। सो आई विश कोहली भारत के लिए और वर्ल्ड कप का मेडल लेके आए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफीज लेकर आए। बट क्रिकेट ओलंपिक्स में अभी जा रहा है, हमारे लिए वो सबसे बड़ा स्पोर्ट है। बट 2028 LA ओलंपिक्स में क्रिकेट पहली बार होगा। हमने 1928 ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो अगर ओलंपिक्स टू ओलंपिक्स कंपेयर करें, हॉकी क्रिकेट से 100 साल सीनियर है। और उस सुपर सीनियर स्पोर्ट में श्रीजेश के पास 2 मेडल हैं। और खैर आई विल नॉट कंपेयर कि क्रिकेट को लेके और हॉकी को लेके क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या दीवानगी है और क्या चीज़ें हैं। बट मेरे लिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ ह्यूज कोहली फैन एंड अ धोनी फैन, और उनकी अचीवमेंट्स बहुत ऊंचे लेवल पे हैं। बट अगर स्पोर्ट टू स्पोर्ट कंपेयर करें तो क्रिकेट में कोहली के लेवल से बड़ा मेरे लिए हॉकी में श्रीजेश का लेवल है। That's a fantastic thing, sir. Yeah, Really I think we can agree also. Like, Yeah, I mean definitely. I mean, जैसा आपने कहा कि that perspective of having कि sports might differ, Yeah. but that achievement, as you said, with 4 Olympics that's really huge. That definitely. अमेजिंग। हाँ, Yeah. मतलब एक ऐसा भी टाइम था, हमने वो भी देखा है, नॉट टू फार बिहाइंड। 2008 में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, हमने वो टाइम भी देखा है। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स। मैंने हरमन से पूछा था कि 2008 में उनकी उम्र कितनी थी, हाउ ओल्ड ही वाज, हरमन एंड जर्मनप्रीत एंड मनप्रीत एंड मनदीप एंड गुरजंट एंड शमशेर, वो लोग जो टोक्यो खेले हैं, जो लोग पेरिस खेले हैं। इमेजिन आप पंजाब में हो, हरियाणा में, किसी भी स्टेट में हो, 10, 12, 15 साल की आपकी उम्र है एंड यू प्लेइंग हॉकी। तो 10-12 साल की एज वो होती है जब आप ये सोचते हो कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है या स्टडीज में करियर बनाना है। व्हेन यू आर इन 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड एंड वन डे यू वेक अप और आपके हाथ में न्यूज़पेपर है और आप पढ़ते हो कि इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। भारतीय हॉकी के इतिहास में काला दिन, भारतीय हॉकी के इतिहास में ये हुआ वो हुआ, यू नो, एंड दोज जर्नलिस्ट्स वर राइट।
जहां हमारे पास 1 दर्जन ओलंपिक मेडल हैं, 8 गोल्ड मेडल हैं, हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। उन बच्चों से पूछिए जो उस समय 10, 12, 15 साल की एज में थे, उनके पेरेंट्स से पूछिए जिन्होंने उनको अलाउ किया कि जाओ हॉकी खेलो, जहां हम ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्या सोच के उनके पेरेंट्स ने अलाउ किया होगा कि इस स्पोर्ट में जाके आप अपना करियर बनाओगे। क्या करियर है यार। और उस टाइम तो हॉकी इंडिया लीग का हमने नाम भी नहीं सुना था, 2008। तब तो फेडरेशंस चेंज हो रही थी, हॉकी में रोज नए विवाद सामने आ रहे थे, हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज वन मोर रीजन कि मैं इस बैच का, टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स के बैच का बहुत बड़ा फैन हूं कि ये लोग उस समय अपनी टीम्स में थे, अर्ली टीम्स में थे, और आपने उस टाइम भी हॉकी को चुना डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू। उनके पेरेंट्स का इतना बड़ा फैन हूं, जब भी किसी के पेरेंट्स से मिलूंगा फर्स्ट थिंग आई विल डू इज टच देयर फीट कि भाई आप लोगों को सलाम है कि आपने अपने इन बच्चों को हॉकी खेलने दी जो बाद में जाके ओलंपिक मेडलिस्ट बने। तो उसी बैच में श्रीजेश भी हैं। उन्होंने तो वो तो इनफैक्ट उस टाइम इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा थे किसी न किसी लेवल पे। तो वो बुरा दौर देख के फिर आपने 2 मेडल जीते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। तो सर, ड्यूरिंग द ओलंपिक्स यू वर देयर, यू सॉ ऑल दीज ओलंपियंस, was there anyone, apart from hockey, who positively stunned you, like positively surprised ki wow, this is someone that India can count on to be a real medal hope, we were not expecting, ऐसा कोई जो आपको बहुत positively surprised किया कि okay, this is an actual proper Indian Olympian medalist हो सकता है? I'll be honest, पहला नाम मनु भाकर का दिमाग में आएगा, बिकॉज एक ओलंपिक में 2 मेडल इससे पहले हमें मिले नहीं हैं, वो भी शूटिंग जैसे स्पोर्ट में जहां आ रहे थे फिर एकदम से रुक गए मेडल। बट अगेन वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिन जिन प्लेयर्स से हमारी पर्सनल सबकी आशा थी वहां कम मेडल मिले हैं। जितने मेडल आए हैं इंडिविजुअल मेडल, मोस्ट ऑफ देम वर सरप्राइजेज एक्चुअली। मनु भाकर का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में जो उनके साथ हुआ, उनकी वो गन मेल फंक्शन करना, फिर कुछ और खबरें आई जो अच्छी नहीं थी, एंड वी ऑल नो अबाउट मनु भाकर। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस सदमे से निकलना बड़ा मुश्किल है। एंड शी वाज व्हाट, आई थिंक 19 or 20? 20, I think. Must have been. So up Maybe 18 actually. Maybe Yeah. younger than that. She's 22 now. So Yeah. या सो 18, 19, 18, 19 आप टीन एज में हो और आप ओलंपियन हो और वहां गन मेल फंक्शन कर रही है, एंड यू लूजिंग दैट आपका जो कीमती समय है, और कोच के साथ फिर पता चला ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत सी चीजें। आई थिंक शी वॉज इन डिप्रेशन। हमारा थोड़ा सा हेडेक हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। उनके हाथों से ओलंपिक में फाइनल राउंड में क्वालिफाई करने का चांस हाथ से निकल गया था। शी इज जस्ट 19 years old kid who is representing India in the Olympics। उस डिप्रेशन से निकलना, खुद को मोटिवेट करना कि मुझे ये स्पोर्ट दोबारा से खेलना है, और फिर क्वालिफाई करना, मेडल्स जीतना, ओलंपिक में जाना, 2 मेडल जीतना, ये फेरी टेल से कम नहीं है। क्योंकि दुनिया हमेशा आपकी सफलता देखती है, आपने क्या अचीव कर लिया वो पता होता है। अचीव करने के पीछे की कहानी हम सुन सकते हैं, समझ नहीं सकते। थोड़ा सा समझ सकते हैं, उसे जी नहीं सकते। जब मनु भाकर अपनी फैमिली के साथ आई थिंक केरला में ही हॉलीडे कर रही थी, रूम के अंदर बैठ के क्या सोचा होगा कि वो जो पानी की केटल को पकड़ के दोबारा से प्रैक्टिस करनी शुरू की बैलेंस बनाने के लिए, दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे तो करियर में या इनफैक्ट लाइफ में छोटा सा सेटबैक आ जाए, हम लोग परेशान हो जाएंगे। अगर मनु कम बैक ना करती, दुनिया भूल जाती, या कम बैक करने की कोशिश करती और कामयाब ना होती, फिर भी दुनिया भूल जाती। बट ना सिर्फ मनु भाकर ने कम बैक करने का सोचा, मेहनत की, कम बैक किया और वो करके दिखाया जो पेरिस से पहले कोई इंडियन कर नहीं पाया था। दैट्स अ ब्यूटीफुल फेयरी टेल, ब्यूटीफुल फेयरी टेल। दुनिया को सिर्फ सफलता याद रहती है। और आज भी हम लोग अगर आपस में ही बात कर लें कि पेरिस और टोक्यो में जिन जिन लोगों ने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं, सबका नाम लिखो, हम सबका नाम नहीं लिख पाएंगे। हमारी मेमोरी इतनी छोटी होती है ओलंपिक स्पोर्ट्स को लेकर। हॉकी टीम के स्क्वाड में कौन से प्लेयर थे, 1 मिनट लगेगा सोचने में, उनका नाम लिखने में। तो ओलंपिक का मेडल जीतना, 2 मेडल एक बार में जीतना, ये छोटी बात नहीं है। सो आई थिंक स्वप्निल कुसाले को भी उतना शाबाशी मिलनी चाहिए, अमन सहरावत को भी उतनी शाबाशी मिलनी चाहिए, बट मनु भाकर की शाबाशी इन सारे कारणों की वजह से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है।
Sir, abhi we were started with HIL. Hmm. So franchise sports are a big thing now in India, and 2007 से the one big franchise sport that has stuck with everyone's brain has been the IPL. But now this is very surprising for a sports viewer now that we see all across sports now there are so many leagues. Just say you have covered kabaddi very extensively. Now we have other sports like table tennis, volleyball. All of them have now franchise sports to look at. But मेरे को not to compare, but what do you think a sport like kabaddi has done right that maybe Indian Super League hasn't been able to? Something like the IPL was a huge success. So what do you think that the kabaddi has done right, the Pro Kabaddi League? 3 things. सबसे पहली चीज़ ये है कि खेल के अंदर दम होना चाहिए, लोगों के दिलों में जाने का. फुटबॉल में बहुत दम है. फुटबॉल इज ऑब्वियसली दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट. कबड्डी खेली जाती है भारत में और 3-4 और देशों में, सीरियसली अगर आप देखें तो. और जब आप कबड्डी की लीग देखोगे, नंबर 1 देयर इज नो कंपैरिजन. वहां कोई पैरेलल ड्रॉ ना आप नहीं करोगे. आई थिंक मेरे लिए पहली बात यह है कि स्पोर्ट के अंदर दम है. हम लोग स्पोर्ट क्यों देखते हैं? आई मीन ठीक है, हम तीनों तो स्पोर्ट्स के फैन हैं. आम जनता जो स्पोर्ट्स के नाम पे ज्यादातर क्रिकेट देखती है, वो एक नया स्पोर्ट क्यों देखेगी? एंटरटेनमेंट के लिए. T20 फॉर्मेट इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि 3 घंटे में 3.5 घंटे में आपको फुल एंटरटेनमेंट की गारंटी मिलती है. यू डोंट नो कि किसी दिन टोगो और पेरू भी शायद वेस्ट इंडीज को चैलेंज कर लें. फॉर्मेट ही ऐसा है, एंटरटेनमेंट की गारंटी है. इंडिया स्पोर्ट्स के अलावा सिनेमा से या इवन इलेक्शन से, क्योंकि अभी भी हुए हैं, हम चलो सिनेमा की बात कर ले, हम क्यों सिनेमा के फैन हैं? 2, 2.5, 3 घंटे में एंटरटेनमेंट की गारंटी है. तो कबड्डी गिव्स यू दैट गारंटी ऑफ एंटरटेनमेंट. एक तो छोटा फॉर्मेट है, 40 मिनट का खेल है, विद ऑल द ब्रेक्स एंड ऑल दैट, प्री शो पोस्ट शो. 1-1.25 घंटे में आपको एंटरटेनमेंट की गारंटी मिलती है. मेरे लिए पहला फैक्टर ये था. दूसरा, कहीं ना कहीं चूंकि हमारे देश का अपना खेल है, वी ऑल ग्रू अप प्लेइंग कबड्डी. अलग रूल से खेला हो, अलग फॉर्मेट में खेला हो, बट मुझे याद है मैंने स्कूल में कबड्डी खेली है. हाँ, ये नहीं मालूम था कि चेन बनाने के लिए 2 प्लेयर लगते हैं. हम 7 के 7 प्लेयर हाथ पकड़ के चेन बना के घूमते थे. वो पूरा सी फॉर्मेशन घूमती थी. कुछ पता नहीं था. बॉक लाइन नहीं थी, बोनस लाइन नहीं थी, साइड की गैलरीज नहीं थी, सिर्फ एक मिड लाइन थी और एक एंड लाइन थी. बट हम सबने कबड्डी खेली है, तो हम सबका एक नेचुरल कनेक्शन है. ये 2 चीजें थी. तीसरी चीज, द वे यू प्रेजेंट अ स्पोर्ट, उसमें हैट्स ऑफ टू स्टार स्पोर्ट्स. क्योंकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उस टीम का हिस्सा रहना, उस टीम के साथ काम करना जिन्होंने कबड्डी को टीवी के लायक स्पोर्ट बनाया. खेल होना और खेल को टीवी के लायक बनाना. लाइक T20 इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, बट IPL ने उसमें कुछ ट्वीक्स करके, कुछ चेंजेस करके उसे टीवी के लायक बना दिया, थोड़ा और बना दिया. उसी तरह स्टार स्पोर्ट्स ने किया. कुछ एक रूल चेंज किए. द डू और डाई रेड वो यहाँ इंट्रोड्यूस की गई. सुपर टैकल डिफेंस को थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए वो प्रो कबड्डी में इंट्रोड्यूस किया गया. 30 सेकंड की रेड पहले थी नहीं थी, ऑफ एंड ऑन थी. बोनस लाइन कभी इंटरनेशनल कबड्डी में आती थी, नहीं आती थी. तो ये सारी चीज़ें बेसिकली स्पोर्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने के लिए की गई. सुपर रेड, ठीक है 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, बट टू गिव देम अ टर्म ऑफ सुपर रेड, आई थिंक ये मेरा ही सजेशन था कि इसको सुपर रेड बना लिया जाए. बिकॉज हम फॉर्चुनेटली उस एक बड़े सिस्टम का छोटा सा हिस्सा थे जो इन चीज़ों पे विचार करता था. नई नई टर्मिनोलॉजीज लेकर आना. डुबकी महाराष्ट्र में बोला जाता है, तो उस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया कमेंट्री में. मैट का कलर क्या होगा, लाइटिंग कैसी होगी, दैट प्लेज अ ह्यूज पार्ट. जनता को समझ नहीं आएगा, लेकिन जनता को देखने में अच्छा लगेगा वो लाइटिंग का इफेक्ट. एंड देन द ग्राफिक्स, वो प्रोड्यूसर्स का और असिस्टेंट प्रोड्यूसर का घंटों तक सोचते रहना कि वर्ल्ड फीड का ओपनर कैसे लिखा जाए, क्या क्या वर्ड्स यूज किए जाएं, प्लेयर्स को मॉनिकर्स क्या दिए जाएं. पवन सेरावत को हाई फ्लायर कहना, प्रदीप नरवाल को रिकॉर्ड ब्रेकर कहना, कुछ चीज़ें हमारी कमेंट्री में नई नई चीज़ें बोलना, प्लेयर्स का बैकग्राउंड पता करना. सो इट वॉज अ ह्यूज टीम एफर्ट कि कबड्डी को प्रो कबड्डी के रूप में टीवी के लायक एक स्पोर्ट बनाना. बहुत आई थिंक ये केस स्टडी है जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजीज जो लीग हैं उनके ओनर्स के लिए. और सब वो कहीं ना कहीं अंदर से कबड्डी को अपना एक बेंचमार्क मान के चलते हैं, कोई बोले या ना बोले, कि हमें कबड्डी के जैसा सक्सेसफुल होना है. तो इट्स अ ग्रेट केस स्टडी. और आई थिंक मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैं इस इतने बड़े सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा रहा हूँ. बट
समथिंग लाइक फुटबॉल जो है इतना बड़ा स्पोर्ट, इट हैजंट पॉप्ड ऑफ. पहले सीजन में वी सॉ कि अच्छा टॉप लीग्स की तरह व्यूअरशिप आ रहे, लोग देख रहे, फैंस आ रहे स्टेडियम में. अभी हम जाते ओके शायद मोहन बागान ईस्ट बंगाल के मैच में पूरा स्टेडियम फुल हो, बाकी तो नहीं होता. व्हाई डू यू थिंक अ स्पोर्ट लाइक फुटबॉल हैज नॉट बीन एबल टू डू व्हाट अ स्मॉल स्पोर्ट लाइक कबड्डी हैज बीन एबल टू डू? सी, कबड्डी के लिए अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कबड्डी के पास कोई पैरेलल नहीं था. आप किससे कंपेयर करोगे कबड्डी को? प्रो कबड्डी पहली लीग है, उसके बाद स्टेट लीग शुरू हुई या कुछ और प्राइवेट लीग शुरू हुई, सो वो प्रो कबड्डी को अपना आइडल मानेंगी या उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगी. व्हेन यू टॉक अबाउट फुटबॉल, हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडिया किसी ना किसी लेवल पे कबड्डी खेला है. हम सब ने स्कूल में कबड्डी खेली है. इंटरनेशनली हमारे पास एशियन गेम्स के कुछ मेडल थे, तो हमारे पास कुछ एक मानक था जिससे हम इंस्पिरेशन लें. इंडिया अगर आपके होम स्टेट को छोड़ दें, बंगाल को, केरला को छोड़ दें, गोवा को छोड़ दें, या कुछ एक छोटी छोटी पॉकेट्स को छोड़ दें, उसके अलावा फुटबॉल प्लेइंग या फुटबॉल वॉचिंग कंट्री तो नहीं था, फुटबॉल प्लेइंग तो नहीं था. या मेरा स्टेट पंजाब ले लें तो महलपुर इज अ प्लेस जहां से बहुत सारे फुटबॉलर्स आते हैं. होशियारपुर इज अ प्लेस, जेसीटी फगवाड़ा की लेगेसी है. बट ये 4-5 पॉकेट्स को छोड़ दीजिए तो अभी इंडिया को फुटबॉल प्लेइंग कंट्री बनना है. हम फुटबॉल वॉचिंग नेशन बन रहे हैं धीरे धीरे. हम फीफा देख रहे हैं, हम यूरो देख रहे हैं, हम प्रीमियर लीग्स देख रहे हैं, हम ला लीगा, सरिया देख रहे हैं. बट उसको खेलना वो नेक्स्ट स्टेप है, और फिर उसकी लीग का सक्सेसफुल होना वो अगला स्टेप है. क्योंकि अगर एक एवरेज इंडियन फुटबॉल फैन को लीग देखनी है तो उसके पास फिर यूरोपियन लीग्स बहुत सारी हैं, और समय लगेगा, टाइम लगेगा. कबड्डी के पास कोई एक चैलेंज नहीं था. फुटबॉल के पास सामने बहुत बड़े चैलेंज हैं, बट उसमें भी हैट्स ऑफ टू है उन लोगों को जो आईएसएल के साथ जुड़े हुए हैं, जो इतनी मुश्किलों के बावजूद वो लीग चला रहे हैं. बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर से आके इंडिया में खेले हैं. उसमें बहुत पैसा लगता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा सेल्फ बिलीफ लगता है. बड़ी लंबी एक यात्रा है, बट वो यात्रा चल रही है, चलती रहनी चाहिए. एंड आई एम श्योर यू बीइंग अ बोंग, आप लोगों का कनेक्शन है फुटबॉल के साथ, आपके खून अभी तो कनेक्शन एक्चुअली आई थिंक लगता है कि थोड़ा कम होता जा रहा है. आई डोंट नो व्हाई, बट मैं मेरे फादर की जनरेशन को देखता हूँ, इतने पैशनेट डाई हार्ड मोहन बागान स्टेडियम में जाके सपोर्ट करो, इतना रक्कस एटमॉस्फेयर होते. अभी तो इट डजंट सीम लाइक कि फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल ट्रांसलेट कर रहा है. ऑब्वियसली मे बी पिच पे जो रिजल्ट है उसका भी इफेक्ट है, बट आई डोंट सी फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल ग्रोइंग in the right direction. I don't see it. You very rightly mentioned कि नेशनल टीम की परफॉर्मेंस से फर्क पड़ेगा. अब जब तक सुनील छेत्री खेल रहे थे, ठीक है, हमने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफीज नहीं जीती, बट वी हैड वन सुपरस्टार. उनसे पहले जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, फुटबॉल तब टीवी पे आता नहीं था, बट आई स्टिल हैड हर्ड और रेड द नेम बाईचुंग भूटिया, कि अरे हमारे पास एक सुपरस्टार फुटबॉलर हैं. एंड आई वाज फॉर्चुनेट, मैंने उनके साथ थोड़ा सा काम किया है, मिला हूँ, बात की है, सो विद सुनील छेत्री. बट किसी भी स्पोर्ट में या तो अचीवमेंट्स होनी चाहिए या सुपरस्टार होनी चाहिए. अचीवमेंट नहीं है, लेकिन सुपरस्टार्स का होना बड़ा जरूरी है. आई एम श्योर जब हमें नया फुटबॉल का सुपरस्टार मिलेगा, अब कबड्डी ठीक है, हमारे पास अचीवमेंट थी, सुपरस्टार भी थे, उसको बताने का माध्यम नहीं था. प्रो कबड्डी आई तो हमने बताया कि 1990 से लेके 2010 तक 14 तक हमने लगातार एशियन गेम गोल्ड जीता है. एंड वी हैव समवन कॉल्ड राकेश कुमार और अनूप कुमार और संजीव बालियान और मनप्रीत सिंह और रणधीर सिंह और राम मेहर सिंह और के भास्कर और सो एंड सो फोर्थ. वो चीज़ फुटबॉल में मिसिंग है. आई एम श्योर जब वो मिसिंग लिंक्स पूरे हो जाएंगे, जब हम कुछ बेहतर करना शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जब नीरज ने गोल्ड मेडल जीता, वो बच्चे जो एथलेटिक्स में अधूरे मन से जा रहे थे, वो बच्चे जो सोच रहे थे कि मैं कौन सा स्पोर्ट खेलूं, आई वांट टू प्ले समथिंग, वो अचानक से जेवलिन की तरफ मुड़ गए. अब जब मनु भाकर ने मेडल जीते हैं, आई एम श्योर पूरे देश में शूटिंग करने वाले जो बच्चे थे, जो अधूरे मन में थे, वो पूरे मन से शूटिंग की तरफ गए होंगे, जा रहे हैं. एंड आई कैन गिव यू गारंटी, जब विजेंदर ने मेडल जीता था ओलंपिक्स में, क्यों भिवानी को हम इंडिया का मिनी क्यूबा कह रहे हैं, बिकॉज दे हैड वन सुपरस्टार टू लुक अप टू. और विजेंदर के सामने कैप्टन हवा सिंह थे, जो भिवानी से ही थे, भिवानी के पहले सुपरस्टार बॉक्सर माने जाते हैं. फिर मॉडर्न जनरेशन में विजेंदर बॉक्सर आए और भिवानी में एकेडमीज खुल गई. तो हमें सुपरस्टार चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए. जब फुटबॉल में वो मिलने लगेंगे तो यहाँ भी आप तरक्की देखनी शुरू कर दोगे. सर, आपने जो मेंशन किया अभी नीरज और मनु भाकर का एग्जांपल,
I was just, when the Olympics had just ended, so this is the one thing that I had looked back on and was very surprised by, very positively surprised by. The fact that just after Manu Bhakar's double medal, we saw 3 new shooting academies open in Delhi itself. And then once you look back at when the Olympics were happening, like even like 4 years ago, if you had told someone that an entire nation would be awake at 1 a.m. to look at a javelin match, hoping that Neeraj might get a gold medal, that is the way that superstar changes sport, as you rightly mentioned. 101%. Yeah. आई थिंक आप चलिए इंडिया का सबसे बड़ा खेल ले लो क्रिकेट, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट ले लो फुटबॉल. यू नो माय नेफ्यू, माय व्हाट डू यू कॉल हिम, मेरे भांजे हैं 2 छोटे छोटे, आई थिंक 6 और 7 ईयर ओल्ड किड, लिव्स इन जयपुर. अब कुछ महीने पहले मैं उनसे मिलने गया, तो इज अ स्मॉल किड एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम. ही सेज, चाचू आप मुझे क्या रोनाल्डो की जर्सी लाके दे सकते हो? आई एम अ ह्यूज मेसी फैन, आई एम अ ह्यूज नेमार फैन. तो जयपुर में रहने वाला 6-7 साल का बच्चा अगर फुटबॉल से खुद को रिलेट करता है तो वो सुपरस्टार्स की वजह से करता है. Exactly. ये 3 प्लेयर या कुछ और जो बड़े प्लेयर्स, आई थिंक यू कैन काउंट मोर, किसी भी क्लब में जाएंगे बहुत बड़ी लॉयल्टी उस क्लब में और बहुत सारा पैसा उस क्लब की तरफ आएगा. इंडिया में अगर आप बच्चों से पूछोगे, कितने सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे मुझसे मिलते हैं, मेरी अपनी बेटी के फ्रेंड्स जब घर में आते हैं तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, अंकल विराट कोहली से बात करवा दोगे? या व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, फॉर मी क्रिकेट वाज सचिन. या मेरे से पहली की जो मेरे बड़े भाई की या मेरे फादर की जनरेशन थी, उनके लिए इट वाज ऑल अबाउट सनी गावस्कर साहब. सचिन आउट, टीवी बंद. मैं उस जनरेशन का इंसान हूं. यहां विराट कोहली अगर एक मैच नहीं खेला है, फर्स्ट ओडीआई नहीं खेला है, आधे लोगों का इंटरेस्ट वहां खत्म हो गया होगा. हमारे पास और भी सुपरस्टार हैं, बट पॉइंट इज कि अगर टीम गेम भी है, वो भी फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सुपरस्टार्स के नाम पे बेचा जाता है, चलता है. और हम तो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की. नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, हमारे रेसलर्स, आप साक्षी मलिक का नाम ले लीजिए, आप बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त का नाम ले लीजिए, विनेश फोगाट का नाम ले लीजिए, सुशील जी का नाम ले लीजिए. अब जैसी भी परिस्थितियां रही हों, इंडिविजुअल स्पोर्ट में तो अगर एक प्लेयर अच्छा करेगा, उससे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है वो नेक्स्ट लेवल मिलती है. और नीरज चोपड़ा इज सच अ गुड स्टोरी. हम ओलंपिक का मेडल जीतने के लिए खुश होते हैं, तरसते हैं कि एक मेडल आ जाए किसी भी स्पोर्ट में. वो अकेला आई थिंक पहला ऐसा इंसान है जिसका सिल्वर मेडल हमें उतनी खुशी नहीं देकर गया, बिकॉज हम उससे गोल्ड से कम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे. वो ठीक है, आप चाहे उसमें पाकिस्तान का एंगल जोड़ दो, यार पाकिस्तान ने गोल्ड जीत लिया, ऑल्दो अरशद नदीम इज इक्वली गुड जेवलिन थ्रोअर, बट नीरज चोपड़ा ने हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी थी कि इनसे तो गोल्ड से कम हमें उम्मीद ही नहीं थी. तो बाद में पता चला कि हमारा भाई ग्रोइन इंजरी के साथ खेल रहा था. वो ग्रोइन इंजरी में भी अपना सेकंड करियर बेस्ट अगर स्कोर कर पा रहा है, सीजन बेस्ट स्कोर कर पा रहा है, इमेजिन उसका स्टेचर कितना बड़ा है और हमारी उससे उम्मीदें कितनी बड़ी हैं. और अगेन आई मीन, सारा इंडिया रात को अगर 1 बजे जगा हुआ है नीरज चोपड़ा के लिए, इमेजिन उस सुपरस्टार का स्टारडम कितना बड़ा है. और उसके बाद कितने बच्चों ने जेवलिन हाथ में पकड़ा है. मनु भाकर के बाद कितनी बच्चियों ने पिस्टल हाथ में पकड़ी है. साइना और सिंधु के बाद कितनी बच्चियों ने बैडमिंटन प्लेयर, माय ओन डॉटर शी प्लेज बैडमिंटन एट अ वेरी वेरी रॉ लेवल, बहुत सीरियस लेवल पे नहीं वो खेलना चाहती या नहीं जाएगी, आई नो हर, बट उसको भी आज भी क्रेज है कि मुझे पीवी सिंधु की तरह खेलना है. वो आज भी जब मैंने कश्यप से और साइना नेहवाल से उसकी फ़ोन पे बात करवाई, शी वाज सो एक्सटेटिक कि मैं एक इतने बड़े सुपरस्टार से, एक ओलंपियन से, मेडलिस्ट से बात कर पा रही हूँ. सो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के स्टार ही चलाते हैं कि उन्हीं को देख के बच्चों को प्रेरणा मिलती है. सो वी आर सो लकी कि हम उस जनरेशन में, उस ज़माने में जी रहे हैं जब हमारे पास सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि ओलंपिक के मेडल विनर भी हमारे सामने बैठे हैं. एंड वी कैन लुक अप टू देम, वी कैन टॉक टू देम, वी कैन एंजॉय देयर अचीवमेंट्स. Sir, I was wanting to speak about football once again, and because तो रिसर्च करते समय हम देखे कि आप फुटबॉल भी कवर किए हैं, and at a very early stage, like we didn't think कि at that point फुटबॉल इंडिया में कवर होता था to an extent. And even adding to that, in Hindi, Yeah. we had absolutely no idea that because football commentary in मैं Hindi फुटबॉल देखना existed. स्टार्ट किया जब 2013 में आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स का हिंदी चैनल आया. Yeah. तो तब फुटबॉल थोड़ा है, बट आप 2000 उसके भी पहले 2006. 2006 I covered FIFA World Cup. Yeah. That was very beginning of my career. 2008 यूरो मैंने कवर किया था
और इन दोनों के बीच में प्रीमियर लीग Premier मैंने League ऑफ ट्यूब कमेंट्री की थी हिंदी में. सो अगेन एज अ कमेंटेटर आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे कुछ ऐसे बॉसेस थे. द फर्स्ट स्पोर्ट जो मैंने लाइव कवर किया था दैट वाज हॉकी, एंड द फर्स्ट गेम जो मैंने कवर किया एज अ कमेंटेटर, फर्स्ट गेम ऑफ हॉकी जब खत्म हुआ लाइव मैच, आई स्टूड अप एंड आई टर्न बिहाइंड, तो पीछे मेरे बॉस के बॉस खड़े हुए थे, द एशिया हेड ऑफ ESPN स्टार, ह्यू बेवन उनका नाम है. ही इज अ ब्रिट. अब हिंदी उनको कितनी समझ में आई होगी, बट स्टिल ही सेड commendable. And I remember his expressions, I remember the way उन्होंने हाथ मिलाया. And the same night there was a party, so he asked me कि Sunil, how much do you follow or understand football? I said, sir, no, nothing. मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि there was a Pele who played football and there is a Ronaldo who plays football, the Brazilian Ronaldo. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि are you willing to learn the sport or follow the sport? at the start of your career, जब आपको नया नया चांस मिला है कमेंटेटर बनने का, मैं तो कुछ भी सीख लूंगा. मुझे अगर बोलते हैं कि सिंक्रोनाइज स्विमिंग को भी कवर करो, उसमें मुझे नहीं पता कमेंट्री कितनी की जाती है, मैं उसको भी फॉलो करता. सो टू गेट द चांस टू फॉलो और टू लर्न अ स्पोर्ट लाइक फुटबॉल विच इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, मेरी अच्छी किस्मत थी. तो उन्होंने मुझे चांस दिया फुटबॉल सीखने का, गलतियाँ करने का, कमेंट्री करने का. और द सेकेंड और थर्ड बिगेस्ट इवेंट फॉर अ न्यू कमेंटेटर, अगर वो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि नोवी कपाड़िया साहब जैसे, लेट नोवी कपाड़िया साहब जैसे दिग्गज के साथ मैंने काम किया, कई सारे इवेंट कवर किए. और जब मुझे फुटबॉल के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, बट चलो नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आप गेन कर सकते हो. लैपटॉप आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, पुरानी टेप्स आपके पास हैं, आप पढ़ो, सीखो, गलतियाँ करो और सीखो. और फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट है जो अगर आपने 1 महीना 2-3 महीना कवर कर लिया, वो आपको अपने अंदर खींच लेता है. यू बिकम अ पार्ट ऑफ फुटबॉल, यू स्टार्ट लविंग दैट स्पोर्ट सो मच, देन यू रियलाइज कि देयर इज अ रीजन people call it the beautiful game. Right. There is something beautiful about that sport. वो हॉकी और कबड्डी जितना फास्ट नहीं है. वो हो सकता है कि 60 और 90 और 120 मिनट के बाद भी कोई गोल ना हो. It could be a 0-0 and then goes to the extra time and then the penalties. Still it is so beautiful. वो उतना फास्ट ना होने के बावजूद आपको एंगेज करके रखता है. I was very lucky यार. मैंने 2006 फीफा वर्ल्ड कप किया, 2008 यूरो किया, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किया, 2022 का यूरो किया इन अ लॉकडाउन एटमॉस्फेयर. जितना भी कवर किया, आई लव्ड इट, आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट. So we are of course big football fans. So when we were researching and like we were thinking of things to talk about with you, when we read about it, we were like very pleasantly surprised that this is a fantastic topic that we can talk to you about for sure. And sir, one thing I wanted to touch back on, जो आप पहले बात कर रहे थे, अब एक सेगवे मिल गया है तो ले लेते हैं. क्रिकेट इन LA 28. What do you think? आप do you think कि क्रिकेट it's a good move क्रिकेट को लाना? Obviously इंडिया का मेडल होप तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर क्रिकेट आ गया. बट क्रिकेट कमिंग इन द ओलंपिक्स, क्या ओलंपिक्स के लिए एक अच्छा not just cricket but it brings exposure to the Olympics as a whole? What is your take on that? I think it's good for cricket and Olympics both. क्रिकेट के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि एक कहीं परसेप्शन बना हुआ है कि क्रिकेट इज़ ओनली ए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट. अब वो चीज़ें धीरे धीरे वो लाइंस फेड हो रही हैं. अब नेदरलैंड्स भी खेल रहा है लगातार, ऐसी ऐसी कंट्रीज क्रिकेट में निकल के आ रही हैं. किसी भी स्पोर्ट के पीछे छुपी हुई मार्केट और उसको सराउंड करती हुई मार्केटिंग दुनिया में अपना असर छोड़ती है. अब NBA बास्केटबॉल या उसकी एक लीग NBA इंडिया में देखी जा रही है कुछ सालों से, बिकॉज उसका शोर इतना ज़्यादा है. हम सब ने सुन लिया NBA के बारे में. या वो लोग जो इंडिया में बंगाल से नहीं हैं, केरला से, गोवा से नहीं हैं, मान लीजिए दिल्ली से हैं, जहाँ फुटबॉल की कोई बहुत बड़ी लीग नहीं है, उन्होंने भी इतना नाम सुन लिया प्रीमियर लीग का कि कहीं ना कहीं वो भी मैन यूनाइटेड के, चेल्सी के, आर्सेनल के फ़ैन बन गए. हमने इतना नाम सुन लिया NBA के सुपरस्टार्स का, चाहे वो स्टेफ करी हों या माइकल जॉर्डन रहे हों या सो मेनी अदर्स, किंग जेम्स रहे हों. इतना कुछ सुन लेते हैं कि लोग देखते हैं कि एक बार देखें तो सही ये हैं कौन.
उसी तरह से सचिन का नाम इतना बड़ा हो गया, वो विंबलडन में जाके भी बैठ रहे हैं, विराट कोहली का, MS धोनी का नाम, रोहित शर्मा का नाम इतना बड़ा हो गया कि उसकी गूंज, उसकी धमक उन देशों में भी जाएगी जहां क्रिकेट बहुत नहीं खेला जाता है। एंड थैंक्स टू आवर NRI ब्रेदरिन, वो चाहे USA में हो, चाहे नेदरलैंड्स, इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कहीं भी हो, जहां भी हम इंडियंस जाते हैं क्रिकेट लेके जाते हैं और भारत का खाना लेके जाते हैं। सो अब जब विदेश के कमेंटेटर भी हमारे साथ इंडिया में काम करने आते हैं, दे ऑल्सो लव ईटिंग शाही पनीर, दे डोंट माइंड ईटिंग चिकन बटर मसाला, नॉट विद मी, आई एम ए वेजिटेरियन, तो मसाला डोसा उनको भी मैं खिलाता हूँ, उनको पसंद है। सो USA में T20 वर्ल्ड कप हुआ तो शोर वहाँ पे अच्छा खासा मच गया। और स्पोर्ट ऐसी चीज़ है जो दुनिया को जोड़ती है, एंड T20 इज़ द मोस्ट एंटरटेनिंग क्रिकेट फॉर्मेट। वो दुनिया ने देख भी लिया US के अंदर, और जब ओलंपिक्स में वो देखा जाएगा तो वो कंट्रीज भी देखेंगी जिन्हें अभी तक बहुत कुछ पता नहीं है। अब हो सकता है US के लोग उसको बेसबॉल से रिलेट कर लें, या जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, हमने NBA देखा, हम बास्केटबॉल को किसी इंडियन स्पोर्ट से नहीं रिलेट कर पा रहे थे, पर जब देखा तो बड़ा मज़ा आया कि यार 2 पॉइंटर लग रहे हैं, 3 पॉइंटर लग रहे हैं, फाउल हो रहे हैं, फ्री थ्रो लिए जा रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। तो हर कंट्री क्रिकेट को ओलंपिक में अपने एंगल से देखेगी, कुछ अपने स्पोर्ट से रिलेट करके देखेंगे, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिहाज से देखेंगे। और जब देखेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो आप भी खेलना शुरू करोगे, जब खेलना शुरू करोगे तो खेल और बड़ा होगा, बड़ा होता जाएगा। सो आई एम वेरी कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू cricket in LA 28. So I mean, can't mention, like, can't go further than the IPL when mentioning cricket. So सारे फ्रेंचाइज लीग का बात कर लिए तो एक बार IPL का IPL का ही बात छोटा कर सा लेते बात हैं। कर लेते हैं। 100%. Sir, you have talked about your interactions with players in the Yeah. hockey industry, in kabaddi as well. Again, we associate, in our country, we associate cricket with the 3 big names. It's Kohli, it's Dhoni, and it's Rohit Sharma of the current IPL crop. Yeah. Have you had any interactions with the big names from the IPL, and what kind of anecdotes can you tell us about your interactions with cricket? यार मेरे लिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, एंड आई एम श्योर पीपल ऑफ योर जनरेशन एंड द जेनजीज आर गोइंग टू किल मी, फॉर मी क्रिकेट मेंट सचिन तेंदुलकर। क्योंकि जिसे आप देख के बड़ा होते हो ना, जो आपको उस खेल से प्यार करवाता है, आपके लिए वो सबसे बड़ा स्टार है। हॉकी में अब आप लोगों को लगेगा कि मेरा फेवरेट हरमनप्रीत है, ही इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड एवरी वंस फेवरेट, बट फॉर मी द सुपरस्टार ऑफ हॉकी इज धनराज पिल्ले एंड गगन अजीत सिंह एंड दिलीप तिर्की एंड दीपक ठाकुर, क्योंकि मैं इनके बैच को देख के बड़ा हुआ हूँ, इनके बैच को देख के मैंने हॉकी से प्यार किया है। एंड यस, स्पोर्ट बढ़ता रहता है, खिलाड़ी फेड आउट होते हैं, नए आते हैं। आज मैं धनराज पिल्ले साहब से मिलता हूँ, सरदार सिंह साहब से मिलता हूँ, अब वो हमारे गुजरे ज़माने के सुपरस्टार रहे हैं। सचिन तेंदुलकर साहब से मैं पिछले IPL में पहली बार मिला हूँ। अब मैं बता नहीं सकता, मैंने उस स्टूडियो के बाहर खड़े होकर वेट की थी, राहुल शर्मा और आकाश चोपड़ा की सिफारिश डलवाई थी उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल सिफारिश। आज की जनरेशन के इन 3 सुपरस्टार से अनफॉर्चुनेटली अब तक मैं मिल नहीं पाया हूँ। हाँ, लेकिन इतनी मेरी ज़रूर खुशकिस्मती है कि 2 बार विराट कोहली को मेरी पंजाबी कमेंट्री सुनाई गई थी, Oh, wonderful. जो क्लिप आप लोगों ने देखी होगी, यू कैन स्टिल फाइंड ऑन सोशल मीडिया, एंड ही वाज एंजॉयिंग इट सो नाइसली, क्योंकि वो खुद पंजाबी हैं, ही स्पीक्स पंजाबी विद हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स। तो जब जैसे ही उन्होंने वो मेरी पंजाबी कमेंट्री सुनी, एंड जिस तरह से पेट पकड़ के वो हंस रहे थे, द काइंड ऑफ मोनिकर्स आई यूज्ड फॉर हिम, और जिस तरह से पंजाबी के फ्रेजेस मैंने यूज़ किए, गुरदास मान दा छल्ला और विराट कोहली दा बल्ला, तो ही कुड रिलेट इट टू द पंजाबियत। Yes. इनफैक्ट जब वो नए नए स्टार बने थे, आई रिमेंबर उनका इंटरव्यू हो रहे थे टीवी चैनल्स में, इंग्लिश चैनल्स में, और वहाँ वो पंजाबी के गाने गा रहे थे। सो नाउ अ पंजाबी कमेंटेटर गिविंग हिम कॉम्प्लीमेंट्स इन पंजाबी, वो विराट कोहली के लिए एक वो गूजबम्स वाला मोमेंट था। तो आई एम श्योर जब आप वो वीडियो देखोगे कि विराट कोहली वो टैबलेट या फ़ोन पकड़ के पंजाबी कमेंट्री सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और अनंत त्यागी वाज टेलिंग हिम कि विराट भाई दिस इज सुनील तनेजा, एंड ही वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली एंड एंजॉइंग। फॉर अ फैन लाइक मी इट्स अ ह्यूज मोमेंट कि विराट कोहली के बारे में मैंने जो बोला वो सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इट्स एन ऑनर, बिकॉज भले ही मैं कमेंटेटर हूं, बट हम तीनों एक साइड में हैं, विराट कोहली दूसरी साइड में हैं, हम मीडिया में हैं और वो सुपरस्टार हैं स्पोर्ट के।
तो हमारे लिए वो बड़े ऑनर वाली बात है। रोहित शर्मा के बारे में हम कुछ भी बोलें, उन्हें पता हो या ना पता हो, अब किसी भी इनफैक्ट नए या पुराने क्रिकेटर को मिलें या हॉकी प्लेयर को मिलें या कबड्डी प्लेयर को मिलें, सो ऐसा होता है कि हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड व्हेन दे से ऑफ कोर्स वी नो यू, ड्रीम्स कम ट्रू। अब इस इंडस्ट्री में मैं जरूर आप लोगों का सीनियर हूं, बट हम सब लाइन के इस तरफ हैं, बाउंड्री के बाहर बैठे हुए हैं, हम सब गुणगान करने वाले लोग हैं, कमेंटेटर प्रेजेंटर्स हैं, वो बाउंड्री के अंदर वाले लोग हैं जो मैदान में खड़े होकर देश का नाम ऊंचा करते हैं या अपनी फ्रेंचाइजी का नाम ऊंचा करते हैं। सो जब उनसे पता चलता है कि वो हमारी कमेंट्री सुनते हैं एंड दे नो अस एंड दे नो ऑफ अस, इट्स अ ह्यूज ऑनर। So sir, ending of this entire interaction, I mean, you were mentioning the Punjabi side of the commentary. You are the one big benchmark that anyone sets for regional commentary in our country for sure. So sir, what do you think वो एक flavor क्या impact करता है audience को sport में? I think the flavor is the operative word in your sentence. आप जब तमिल कमेंट्री सुनोगे या आप जब बांग्ला कमेंट्री सुनोगे, सबकॉन्शियसली हम ये चाहेंगे कि यार उसमें बांग्ला फ्लेवर हो, तमिल फ्लेवर हो, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें हों, कुछ हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई, हमारी संस्कृति से, हमारी बैकग्राउंड से जुड़ी हुई बातें हों। तो मेरे लिए जो चैलेंज जो मैंने खुद को दिया गया था या जो मेरे प्रोड्यूसर्स की तरफ से मुझे चैलेंज दिया गया था वो ये था कि किसी को ये ना लगे कि यार ये तो हिंदी और इंग्लिश का ही पंजाबी वर्जन है। मैंने भी जब अपने सामने एक सिलेबस रखा वो ये था कि किसी को ये ना लगे कि यार ये सेम तो हम हिंदी में सुनते थे या इंग्लिश में सुनते थे, तो पंजाबी में नया क्या है। तो फ्लेवर इज़ द राइट वर्ड कि अगर मैं पंजाबी कमेंट्री करता हूं तो नंबर 1 उसमें पंजाबी फ्लेवर हो, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ओरिजिनल लगे। फॉर मी ओरिजिनलिटी इज द की थिंग। गेंद बाउंड्री तो बाहर गई 4 रन, वो तो एक तमिल और एक बंगाली भी समझ लेगा, तो मैंने उसमें नया क्या कहा है। ओरिजिनलिटी लगनी चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग विद हर्षा भोगले। फ्लेवर की बात करो तो नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा ने जो फ्लेवर डाला है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ मसाला है। तो किसी को ये ना लगे अब कि मैं इनकी कॉपी कर रहा हूँ। आकाश चोपड़ा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सिद्धू साहब, हम बीइंग अ पंजाबी ऑल्सो, बीइंग अ कमेंटेटर ऑल्सो, हम सबके बड़े आइडल हैं, पर किसी को ये ना लगे कि यार इनकी कॉपी कर रहे हैं। फ्लेवर हो पर ओरिजिनल हो। तो वो फ्लेवर अगर पंजाब से आ रहा है, क्या चीज पंजाबियों को जोड़ती है? नंबर 1 फूड। आई थिंक पूरे इंडिया को जोड़ती है ना। पंजाबियों का खून लेके अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो वो आपको उस खून की बूंद में मक्की की रोटी, सरसों का साग दिखेगा, बटर चिकन और पनीर बटर मसाला दिखेगा, अमृतसरी कुलचे दिखेंगे। तो हमें फूड जोड़ता है। सबकॉन्शियसली मुझे बाद में रियलाइज हुआ हमें म्यूजिक भी जोड़ता है। पंजाब में शुभमन गिल सुपरस्टार है, पर जस्सी गिल सुपर डुपर स्टार है, हु इज अ सिंगर एक्टर। एमी विर्क सुपर डुपर स्टार है। स्वर्गीय मूसेवाला सुपर डुपर स्टार हैं। गुरदास मान साहब, सारे के सारे सुपर डुपर स्टार हैं। और बाद में अगेन मैंने जब डॉट्स को कनेक्ट किया कि क्यों राइम्स चल रही हैं। आई एम नॉट अ कंपल्सिव राइमर, हिंदी में मैं राइम नहीं करता हूं, पंजाबी में अपने आप मुझसे राइम हो रही है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मुझे फीडबैक बड़ा अच्छा मिल रहा है। आई थॉट ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं राइम करता जा रहा हूं, लोगों को पसंद आ रही है। देन आई रियलाइज कि हमारे पंजाब में कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, बर्थडे हो, हमारे बोलियां बहुत फेमस हैं, पंजाबी बोलियां, जिस पे गिद्धा या भंगड़ा किया जाता है। और हमारे शादियों में लोग ऑन फीट खड़े होकर बोलियां इजाद करते हैं, डिस्कवर करते हैं। बारी बरसी खटन गया सी, खट के लियांदी चाबी, भंगड़ा तां सजदा जे नच्चे मुंडे दी भाबी। हम ऑन फीट बोलियां मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे लोग खड़े होके। वो शायद उसी का इफेक्ट था कि कमेंट्री में ऑन फीट मेरे से राइम्स हो रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कल्चर में आ गया है। सो जब हम अपने कल्चर को लेके चलेंगे, पंजाब के खाने को लेके चलेंगे, फाजिल्का, मलोट, बटाला, समराला, पटियाला, जिनके नाम पंजाब के बाहर लोगों ने कम सुने हैं, वो जब आईपीएल कमेंट्री में लोगों को सुनने को मिलेंगे तो एक कनेक्ट आएगा। तो आई थिंक ये सारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस फैक्टर थे जिससे पंजाबी कमेंट्री को इतना प्यार मिला। एंड आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड एंड वेरी वेरी लकी कि वो प्यार का थोड़ा सा हिस्सा अगर मुझे मिला है। और आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज जब नॉन पंजाबी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई मीन अ तमिल गाय एंड अ बंगाली टॉकिंग अबाउट पंजाबी कमेंट्री, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो अभी सुनील सर के लिए हमारा कुछ रैपिड फायर है, बट उतना भी रैपिड नहीं जाना है। तो सर जस्ट एनेक्डोट्स अगेन। सो
favorite moment from commentary box? जब हमने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। Right. पेरिस में इम्पोर्टेंट था, बट टोक्यो वाला मेडल हमें 41 साल बाद मिला था। और मैं उस जनरेशन से स्पोर्ट्स देखता आया हूँ जब ओलंपिक्स का मतलब हॉकी था। हाँ. कि ओलंपिक्स आ रहे हैं, हॉकी में मेडल आएगा क्या? हॉकी में मेडल आ गया, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। Right. Most memorable fan interaction. काफ़ी सारे हैं। मोस्ट मेमोरेबल, आई थिंक प्रो कबड्डी चल रही थी, सीज़न 2 या सीज़न 3 था, दिल्ली में। हमारा कमेंट्री बॉक्स ओपन में होता है और ठीक पीछे स्पेक्टेटर्स गैलरी होती है। और ये सीज़न 2 और 3 है, कबड्डी नई नई आई है, और आई थिंक बहुत कम लोग हम कमेंटेटर्स को जानते होंगे। अ गाय टैप्ड मी फ्रॉम बिहाइंड, आई थिंक वो मेरठ से या यूपी के किसी हिस्से से आए थे। वो एक बहुत बड़ा हैंडमेड ग्रीटिंग बना के लाए थे, जिसमें हैंडमेड फ्लावर्स थे, इट वाज कस्टमाइज्ड। दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड, आई थिंक उसी सीज़न या उससे नेक्स्ट प्रो कबड्डी सीज़न की बात है, कोलकाता में अ यंग गर्ल मैसेज्ड मी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स। और वो अपने हाथ से मेरा स्केच बना के लाई थी पेंसिल Wow. से। सो दैट मेंट अ लॉट। Lovely. Sir, most memorable player interaction. I mean, आपने तो already इतने सारे player interaction के बारे में बात किया. So, and apart from that, if there's anything which stands out in your memory, you know, A very special moment. yeah, which you hold close to your heart. बहुत सारे हैं यार। आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। क्रिकेट में, हॉकी में, कबड्डी में, बट आई वुड से धनराज पिल्ले साहब से मिलना, कई बार मिला हूँ। आई वॉज इन बेंगलुरु फॉर वॉलीबॉल लीग। सो हमारे इंडियन एक्स हॉकी कैप्टन, एक और एक्स हॉकी कैप्टन है अर्जुन हलप्पा, ही कॉल मी अप कि सुनील भाई कब मिल रहे हैं, आपको अकेडमी में लेकर जाना है। सो ही इज़ रनिंग अ वेरी गुड अकेडमी देयर। वहाँ मिलने गए तो पता चला धनराज पिल्ले साहब भी उनकी अकेडमी से जुड़े हुए हैं। तो आई सेड कि चलो मिलेंगे उनसे, कहाँ हैं वो। बट धनराज पिल्ले साहब ड्रोव टू द अकेडमी, केम टू मीट मी, देन ड्रोव मी इन हिज कार फॉर लंच। Wow. I still can't believe it. That says it all. I still can't believe it. Fanboy moment. of- Fanboy moment में अभी भी he calls me, I call him, I talk about him very frequently in commentary, and he always responds. वो मैसेज करते हैं, सुनील भाई थैंक यू मुझे याद करने के लिए। I feel honored talking about him. और fantastic. धनराज पिल्ले आपको लंच पे लेके जा रहे हैं। Unbelievable. That says it all, sir, genuinely. So this might be a little bit of a tricky one for you, sir. Your favorite sport to commentate on? वेरी वेरी ट्रिकी। आई थिंक मैं नाम नहीं लूंगा, बट कोई भी स्पोर्ट या फॉर्मेट जो आपको चैलेंज करता है। क्योंकि आप भी जैसे जैसे मीडिया में एक्सपीरियंस गेन करोगे, यू विल रियलाइज कि जो चीज़ चैलेंज नहीं करती है वो चीज़ मज़ा नहीं देती है। इट कुड बी क्रिकेट ऑल्सो, जो मैं 20 साल से कॉमेंटेट कर रहा हूँ, बट क्रिकेट का नया वर्जन पंजाबी कॉमेंट्री, दैट वॉज अ चैलेंज फॉर मी। Right. मुझे खुद को रीडिस्कवर करना था। आई लव्ड इट। NBA कमेंट्री मैंने की, उससे पहले आपने कभी NBA भी की है? हिंदी में Wow. कुछ महीने, Wow. उससे पहले NBA कभी देखा भी नहीं था। दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी। Right. फुटबॉल कमेंट्री जब पहली बार की तो मुझे शायद ये भी नहीं पता था कि विला रियाल है या विया रियाल है। हाँ. वो खुद के लिए चैलेंज था। Right. इवन कबड्डी कमेंट्री हमने सिर्फ 2 या 3 बार एशियन गेम्स में फाइनल देखे होंगे। दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी। डूइंग हॉकी कमेंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अ चैलेंज फॉर मी। कोई भी चीज, कोई भी स्पोर्ट जो चैलेंज करता है, मैंने रग्बी 7 किया था खेलो इंडिया गेम्स में, 2 ही मैच किए थे। सो एनीथिंग दैट चैलेंजेस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। Wonderful. So one city, one particular city. Let's rule out Punjab because that's your home. Yeah. One city where you love the sport culture. थिंक अगेन स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। मैं कोची में गया हूँ 2-3 बार टू कवर वॉलीबॉल। अमेजिंग एटमॉस्फेयर। चलो पंजाब आपने रूल आउट कर दिया, तो राउरकेला Odisha. एंड राउरकेला भुवनेश्वर फॉर हॉकी अमेजिंग। रांची फॉर हॉकी अमेजिंग कल्चर। क्रिकेट तो खैर सारी इंडिया में है ही है, उसको तो नाम ना लें तो भी चलेगा। कबड्डी के लिए पुणे, अमेजिंग एटमॉस्फेयर इन पुणे। नोएडा में भी इनफैक्ट काफ़ी फैन फॉलोइंग थी। उसके अलावा हैंडबॉल मैंने कवर किया था एक ही सीज़न जयपुर में, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था उसे। इवन वॉलीबॉल एंड कबड्डी बोथ इन चेन्नई। Chennai, yeah. देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट चेन्नई।
कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी लीग हो, लोग बहुत प्यार करते हैं. So you owe me one Yes, absolutely. idli, puri and dosa. Absolutely. So again, funniest news piece you've read or heard about yourself? Funniest. यार ज्यादा फनी चीजें लोगों ने मेरे बारे में नहीं लिखी हैं. Strange, confusing. स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग. आई थिंक ये था कि व्हेन दिस सरपंच थिंग बिकेम बिग ड्यूरिंग पेरिस ओलंपिक्स, तो शायद मैंने कहीं ये पढ़ा था कि सुनील तनेजा ने हरमनप्रीत को सरपंच नाम इसलिए दिया है क्योंकि हरमन इज द सरपंच ऑफ हिज विलेज. Right. हाँ, ये तो आपने भी Yeah, शायद देखा yeah, था. I've definitely read about this. शुरू में कुछ लोग तुक्का लगा रहे थे कि सरपंच क्यों बोला जा रहा है, और लोगों को ये नहीं पता कि मैं आईपीएल में शिखर धवन को ऑलरेडी सरपंच कहता हूं. पंजाब टीम दा सरपंच, पैट कमिंस बिल्लियां अखां वाला सरपंच, ब्लू आइड सरपंच. बट वो सरपंच इसलिए बड़ा बन गया क्योंकि ओलंपिक्स था और हिंदी में था, पूरा इंडिया देख सुन रहा है. तो जिन जर्नलिस्ट को नहीं पता था उन्होंने तुक्का लगाया कि सरपंच का मतलब तो होता है गांव का सरपंच, तो हरमन हो सकता है गांव का सरपंच हो. सो आई थिंक वो दैट वाज द फनीएस्ट थिंग. और फिर शायद जब गाय फ्रॉम एचटी में भी इंटरव्यूड मी, तो वो फ्रंट पेज न्यूज आई थी. फिर बाद में सबने करेक्ट किया, अच्छा ये कैप्टन को सरपंच कह रहे हैं इसलिए. आई थिंक दैट इज द फनीएस्ट थिंग. And sir, if not a commentator, then what? आई एम अ क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर. Oh, wow. अगर मुझे आई मीन मेरी किस्मत लेके आई है पूरी तरह से इस फील्ड में. Like every self-respecting Punjabi, I was planning to go abroad Right. after completing my graduation. Right. Australia was my first choice to pursue higher education. Australia में शायद मैं हर्बल आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी क्लिनिक चला रहा होता बैठ के. And Alright. to So cap do it we off, do we do the tic tac toe? we have one question left, right? Oh, we let's- have let's- one very important question left. Is Knuckleball now your favorite podcast? नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है. आप लोगों ने बहुत अकल से किया है. So yes, hats off to you. Thank you so much. Thank you. All right. Okay. Final thing, tic tac toe. Yeah. Let's set it up. Yeah. Cricket tic tac toe with Sunil Taneja. Sir, first pick. RCB IPL century, Sure. Virat Kohli. That's correct. I think the easiest. Yeah. Let me say the correct thing. Okay. That's correct. Okay. I'll go for 10,000 ODI runs and Sri Lanka. I will go for Mahela Jayawardene. That is correct. So I'll do that. Punjab and Sri Lanka. Jayawardene. That is also correct, yes? That is correct. Mahela Jayawardene again. So now I have to block Sir somewhere. Right, okay. I'll go for RCB and CSK. I will go for Subramanian Badrinath. Subramanian Badrinath is correct. Options क्या हैं अभी हमारे पास? आपको मुझे ब्लॉक करना होगा. Oh yes, there's only one chance. Yes. Punjab Kings and IPL century. Oh God. रुको. Sir, Prabh Simran Singh. correct. That is correct. What an answer. Wow. लेटेस्ट है ना इसलिए पंजाब कमेंट्री की है मैंने उसके मैच में. अदरवाइज माय मेमोरी इज वेरी बैड. Now I have Okay, to block. Shriram, you are screwed. Now I have to block you. You can't block, sir. Oh yeah, he's won anyways. Oh. Wow, yes, he's won. Because दोनों ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी कहाँ फिर है? अभी भी आंसर देना पड़ेगा. हाँ. Chennai Super Kings and Punjab Kings. I will go for Murli Vijay. That is correct. Okay, sir. You can win it. सेंचुरी एंड 10 के ODI रन्स. विराट कोहली. Virat Kohli. That is correct. ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਛੱਲਾ ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. Someone said it in Punjabi commentary. For the viewers, this part is for the viewers. At the start, when we were recording this, he was very, very underconfident. I He still said am. he's not going. He said he was not going to get any answers right. He has defeated me. Sir, thank you so much for joining us. इतना मजा तो हमें लगा था मजा होगा, इतना मजा होगा. I didn't think so. Thank you so much for joining us. It was a complete honor to have you. Thank you so much, guys. I think I'm pleasantly surprised with myself कि मेरी इतनी खराब मेमोरी में से 3-4 मैंने सही जवाब कैसे दे दिए. It was fun. Thank you very much, and I wish you all the very best for the Knuckleball podcast and your careers also. Thank you. Thank you so sir. much. Thank you so much, sir.
It was a pleasure. Tune in to Knuckleball on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, and wherever you find your podcasts.